तो फिर अब Yeah. we'll have to shift to live वैसे ही. ठीक है, okay. Now osmosis is the third method of movement of substances, and it is a special type of diffusion involving only the water molecules. And in this expression that follow, remember कि solute जब एक mix होता है solvent में, that makes up a solution. In a sugar solution, for example, the solute is sugar and the solvent is water. And osmosis is known as the net diffusion of water molecules from a region of higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane. Now ये सिर्फ water के लिए होता है, just for water molecules, और हम वहाँ पे concentration के बजाय we use the term water potential, and that it is passing through a partially permeable membrane. In figure 4.10, there are two solutions separated by a partially permeable membrane. This is a membrane that allows only certain molecules through, just like membranes in living cells. और जैसे हमने एक तरफ देखा that let's say we have a solution A and a solution B. Solution B के अंदर अगर solute की concentration high है, इसका मतलब उल्टा है, ये कंफ्यूज हो जाए तो वो समझते हैं कि concentration high है B में, इसका मतलब है कि water potential की बात हो रही है. When solute concentration is high in B, that means that B के अंदर जो water concentration है वो कम है. और अगर A में वो कहता है कि concentration is low, that doesn't mean कि water की concentration की बात हो रही है. Concentration low होने का मतलब है कि water potential उसमें ज्यादा है. So movement would go from A to B. A dilute हुआ फिर. Dilute का मतलब होता है more water potential. और concentrated term का मतलब होता है less water potential और more solute. सो इट्स नॉट द कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से नहीं मूव होगा, वो डिफ्यूजन होती है वाटर पोटेंशियल के हिसाब से. आपने देखना है लार्जर द कॉन्सेंट्रेशन मींस लेसर द वाटर पोटेंशियल. सो फर्स्ट वी इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द मेम्ब्रेन वाज नॉट प्रेजेंट. अब ये आपकी डेफिनेशन के अंदर यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन. अगर मेम्ब्रेन ना होती तो फिर तो solute molecules and water molecules were basically free to move anywhere within the solutions, and as they both move randomly, both the water molecules एंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वो तो फिर स्प्रेड होते रहते हैं इवनली थ्रू द स्पेस. जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर भी, सेल वॉल तो कोई कंट्रोल नहीं करती है, तो सेल मेम्ब्रेन का होना क्यों हेल्प करता है? बिकॉज आप इन दोनों सॉल्यूशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हो? जस्ट बाय मूविंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, ताकि सोल्यूट को हिलना ना पड़े. अब अगर ये पार्शली परमेबल ना होती, अगर ये फुली परमेबल मेम्ब्रेन होती लेट्स से, तो क्या होता? आप यहाँ मुश्किल से वाटर को बैलेंस करते तो पता लगता सोल्यूट भी उधर चलता चलता उधर वापस आ गया. आप वाटर उधर भेजते तो पता लगता सोल्यूट इधर आ गया. अब यहाँ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन का फायदा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन इज दैट यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर. आप वाटर बैलेंस कर लो, सोल्यूट इज गोना स्टे वेयर इट इज बिकॉज वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास ही नहीं कर सकते हैं. मेम्ब्रेन इज ओनली अलाउड वाटर टू पास. अगर ये फुली परमेबल होती तो क्या होता? आप वाटर के बजाय दोनों बैलेंस करने पड़े तो दोनों हिलते जलते एक जगह टिकते ही ना, और वो कभी आपका इक्विलिब्रियम में जाता ही ना. एट इक्विलिब्रियम अब फायदा ये है कि आपका सोल्यूट दोनों तरफ एक एक ही है, बट आपने वाटर उस लिहाज से बैलेंस कर लिया है. इज इट क्लियर दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन? Yeah. Good. So now consider the situation where a partially permeable membrane is present. The solute molecules are too large to get through a membrane. तो इसलिए फायदा है ये, अब आपके पास advantage आ रहा है of a partially permeable membrane, that now the molecules are already too large to get through the membrane and only the water molecules can pass through. The solute molecules move about randomly, but as they hit the membrane, they simply bounce back. The number of solute molecules on each side of the membrane stay the same. The water molecules also move about randomly, but they are able to move both from A to B and from B to A. अब आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? वाटर पे. वाटर ही A to B भी मूव कर सकते हैं और B to A भी मूव कर सकते हैं, बट सोल्यूट की टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन. सोल्यूट वो आपके लिए कंट्रोल कर रहा है. This means that A will now end up with a fewer water molecules so that the solution becomes more concentrated with solute, and B will end up with more water molecules so it becomes more dilute. So the volume of B is going to increase because now it contains the same number of solute molecules. जो शुरू में let's say इसके पास 10 solute molecule थे और इसके पास 20 थे. Solute molecules are still the same. ठीक है, यहाँ पे the only thing that is moving is the water. वाटर मजीद आके आ गया तो आपको देखिए कि वॉल्यूम बढ़ गया है. वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके अंदर 20 सोल्यूट ऑलरेडी था, अब 100 वाटर भी आ गया, और वहां पे आपको 10 सोल्यूट है और थोड़ा बहुत पानी है. सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिडंट चेंज, यू जस्ट एडेड वाटर, इसलिए उसका वॉल्यूम ऊपर गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है. यू डिड मेक द सोल्यूशन डाइल्यूट, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ गया.
जैसे अगर आपसे मीठा ज्यादा डल जाता है किसी शरबत वगैरह में, तो आप क्या करते हो? अब आप वो सॉल्यूट तो निकाल नहीं सकते अंदर से, आप पानी और ऐड करते हो। अब पानी और ऐड करने में क्या होता है, आपका ग्लास भी तो ऊपर तक भरने लग जाता है। इसलिए हमेशा जगह छोड़ते हैं ताकि मीठा कंट्रोल करने के लिए यू कैन ऐड वाटर या रिमूव वाटर, क्योंकि आप सोल्यूट तो रिमूव कर नहीं पाओगे, वॉल्यूम तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, दैट वॉल्यूम तो अब इंक्रीज होगा ही होगा। इज इट क्लियर? Yeah. So the net diffusion of water molecules from a region of a higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane is known as osmosis. Now the term water potential is very useful when you're considering osmosis. यहाँ पे हम इसके लिए psi का value phi use करते हैं. Phi is a symbol that represents your water potential, and it is a measure of tendency of water to move from one place to another. Water potential आपको ये भी बता सकता है किसी solution का कि उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है, कम है, पानी कम है, ज्यादा है, पानी बाहर मूव करेगा, अंदर मूव करे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ इस वाटर पोटेंशियल से पता लग सकती है कि वो किस तरह इंक्रीज भी किया जा सकता है, किस तरह डिक्रीज भी किया जा सकता है, विच इज गिवन बाय द सिंबल ऑफ फायर. You can think of water potential as being the tendency of water to move from one place to another. Water always moves from a region of higher water potential to a region of lower water potential. So water always moves down the water potential gradient. ये डाउन द ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? जैसे डिफ्यूजन के अंदर भी कैसे मूवमेंट हुई थी, हाई टू लो, ये भी डाउन है. ऑस्मोसिस के अंदर भी कैसे मूव हो रही है, हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर प्रेशर, ये भी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम आगे पढ़ेंगे वो जाता है आपके पास अगेंस्ट, मतलब कि लो से हाई आप पहाड़ चढ़ रहे हो, लो टू हाई आप जा रहे हो. एक चीज जब खुद आ रही होती है वो ऊपर से नीचे खुद आ जाती है ना, दैट इज पैसिव. डिफ्यूजन भी खुद आएगा, हाई से लो ही गिरनी है तो ठीक है डाउन आ रहा है. ठीक है, ऑस्मोसिस भी हाई से लो डाउन आ रहा है, एक्टिव अगेंस्ट जाता है. सो वाटर कब तक मूव करता है ऑस्मोसिस में, ये भी एक सवाल है, दैट कब तक, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. और इक्विलिब्रियम कब रीच होगा, व्हेन वाटर पोटेंशियल इज द सेम थ्रू आउट द सिस्टम. ये नहीं लिखना है कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी. कॉन्सेंट्रेशन जिसकी पहले थी अभी भी उसकी उतनी है, आपने बस पानी ऐड करके वॉल्यूम ज्यादा कर दिए कि सोल्यूट का असर कम लगे. तो वाटर पोटेंशियल जब तक सेम हो जाएगा इन बोथ ऑफ द साइड्स, टिल देन ऑस्मोसिस विल कीप ऑन गोइंग. With reference to osmosis, water potential depends on two factors: the concentration of the solution, and number two, how much pressure is applied to it. For example, a solution containing a lot of water has a higher water potential than solution, which means relatively little water. So solution A has a high water potential than B because A is more dilute, और ये सारी वही बात हो जाएगी, और high potential to low potential आपके पास movement होगी, that you can see over here as well. अब क्वेश्चन आते हैं कि अब मैं अगर अप्लाई करूं प्रेशर ऑन बी, इफ आई अप्लाई सम प्रेशर ऑन बी, नाउ व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू प्लेस. यस, प्रेशर अफेक्ट करेगा. प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि as you increase the pressure, the volume decreases. They have an inverse relation. When you increase the pressure, volume decreases. और volume जब decrease हो तो compromise आपके पास दोबारा से water molecules ही पकड़ेंगे. And now they are going to move from a region of lower water potential to a region of high water potential. ये negative काम होने लग गया. पॉजिटिव क्या था कि हाई से लो ही जा रहा था, अब नेगेटिवली आ रही है. नेगेटिव का मतलब लो से हाई वाटर पोटेंशियल जाना पड़ रहा है, बिकॉज बी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ है, and now some water molecules are actually squeezing into the A side. So pressure on a solution increases its water potential. ये हमने एक चीज देख ली. अब ये भी कब तक होता रहेगा, जब तक your B का water potential is higher than the water potential in A. So how do you measure water potential? It can be measured in pressure units called kilopascals. As you have seen, the water potential of pure water will always be higher than the water potential of a solution, assuming that there is no extra pressure applied to the solution. For reasons that you do not need to consider here, the water potential of pure water is set to 0 kilopascals, since all solutions have a lower water potential than pure water. The water potential of all solutions must be less than 0. In other words, वो हमेशा negative होने चाहिए हैं. Now, why? क्योंकि लोअर वाटर हम हमेशा कंपेयर किससे करें, प्योर वाटर से. वी हैव टेकन प्योर वाटर एज अ स्टैंडर्ड, और उसी के अगेंस्ट हम उसी को एज अ स्टैंडर्ड लेके कंपैरिजन में कहीं पे लो वाटर पोटेंशियल कर रहे हैं, कहीं पे हाई वाटर पोटेंशियल कर रहे हैं. A dilute solution will have a less negative value than a concentrated solution. For example, a solution with a water potential of minus 10 kilopascals has a higher water potential than a solution with a potential of minus 20 kilopascal. तो याद रखें, -10 kilopascals वाला है हाई वाटर पोटेंशियल वाला,
एंड द मोर नेगेटिव यू गो, इट बिकम्स लेस वाटर पोटेंशियल की तरफ वो वैल्यू आपके पास जाती रहती है। दैट इज द ओनली रिलेशन दैट यू नीड टू नो। ये कोई मैथमेटिकल हमने इसमें तैयार भी नहीं करना। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हाउ डज ऑस्मोसिस डिफर इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स? कहाँ पे जाके फर्क आएगा? In plant cells, it helps in turbidity, like it यस, affects it. टर्जिडिटी, क्योंकि वो सेल वॉल है। Yeah. And in एनिमल में red blood cells, हम्म। red blood cells, ठीक है। by the shape of the red blood cells, like it affects the shape of it. ठीक है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एक मेजर डिफरेंस पहले तो आपको पता होना चाहिए, इट इज द एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। Cell wall. जब ये चीज आपको क्लियर हो गई है, नाउ यू कैन टेल कि ऑस्मोसिस कहाँ पे फर्क है। ऑस्मोसिस का प्रेशर होना, कम ज्यादा होना बर्दाश्त कर लेगा एक प्लांट सेल, इट हैज अ सेल वॉल। एनिमल सेल्स Yeah. बर्दाश्त कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, हाई टू लो हो, लो टू हाई हो लो हो, उनमें कुछ ज्यादा हार्श चेंजेस आएंगे। A convenient type of animal cell अगर हम study करें, for example red blood cell, a slide of fresh blood viewed with a microscope will show large number of red blood cells जो कि इस वक्त नॉर्मल शेप के अंदर आपके पास मौजूद है। अब आपने इन दोनों को डिफरेंट सॉल्यूशंस में मिक्स किया, ठीक है। पहले आपने उसको मिक्स किया हाइपरटोनिक में, और फिर हमने उसको किया हाइपोटोनिक में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होती है और वाटर पोटेंशियल कम होता है। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी, ये टर्म जरूरी आती है पेपर में, जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो और वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो। तो अगर आप उसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे जहाँ वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा है सॉल्यूशन में, तो पानी तो अंदर आने लगेगा सेल्स के, एंड द व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो अंदर आना शुरू होगा एंड द रेड सेल इज गोइंग टू बर्स्ट। नॉर्मल में जब दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल सेम है तो इक्विलिब्रियम में रहता है। और अगर आप उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाई एंड वाटर पोटेंशियल इज लो। मतलब सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल कम है, तो मतलब सॉल्यूशन की अगर लो है और अंदर हाई है, तो पानी बाहर की तरफ मूव करेगा एंड द रेड ब्लड इज गोइंग टू श्रिंक। श्रिंक होके उसकी शेप हो जाएगी क्रीनेटेड। वी कॉल दिस प्रोसीजर क्रीनेशन एज वेल, कि उसकी शेप बिल्कुल क्रीनेटेड सी आपके पास हो गई है। बट वेयर एज इफ यू कंपेयर द ऑस्मोसिस फ्रॉम एनिमल्स इनटू प्लांट सेल्स, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स which are very strong and rigid. And imagine a plant cell being placed in pure water or a dilute solution. The water or solution has a higher water potential than the plant cell, and water therefore enters the cell through its partially permeable cell surface membrane by osmosis. Just like in the animal cell, the volume of the cell increases, but in the plant cell, the wall resists the expansion of the protoplast, which is the living part of the cell inside the cell wall. प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल प्लस वैक्यूल के मेम्ब्रेन प्लस जो कुछ वैक्यूल के अंदर और जितने ऑर्गेनेल्स आप कहते हैं, तो उस पूरे एरिया को मैं प्रोटोप्लास्ट कहता हूँ। जो जो सामान सेल वॉल की अंदर वाली साइड पे, ठीक है, सेल वॉल पार की अंदर जो भी सेल के अंदर जो कुछ है वो सारा क्या है? प्रोटोप्लास्ट। आपका साइटोप्लाज्म भी है, आपके ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल, सब कुछ वो आ जाता है। अब जब पानी अंदर आएगा, pressure rapidly starts to build up inside the cell, and the pressure increases the water potential of the cell until it equals to the water potential outside. But the thing is कि pressure easily build up हो जाता है and it takes a lot of time as well, क्योंकि the cell wall is actually preventing the cell from bursting. Unlike the situation where an animal cell is placed in pure water और वो बिल्कुल इन्फ्लेट होके फट जाता है, यहाँ पे आपके पास वो इन्फ्लेट होके इट्स बिकमिंग टर्जिड। आपका प्रोटोप्लास्ट बेशक वॉल्स के साथ दबना शुरू हो जाए कि मुझे निकालो, the cell wall made up of high tensile cellulose molecules is not gonna break. So we call this state as a turgid cell. But let's say अगर उसको हम एक solution में डालते हैं with a lower water potential, मतलब कि अब पानी को जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल लो है और आपके सेल की हाई है, बाहर की लो है। वाटर हैज टू मूव आउटसाइड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मोलिसिस। और सेल हम कहते हैं कि यार ये प्लाज्मोलाइज हो गया है, क्योंकि उसका सिर्फ प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हुआ है। प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हुआ है। प्रोटोप्लास्ट क्या क्या है? आपके साइटोप्लाज्म, आपके ऑर्गेनेल्स, आपका वैक्यूल, आपकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सब कुछ जो कि सेल वॉल के अंदर अंदर है। Water will leave the cell by osmosis, and as it does so, the protoplast gradually shrinks until it's exerting no pressure at all on the cell wall,
and both the solute molecules and the water molecules of the external solution can continue to pass through the freely permeable membrane cell wall. And so the external solution remains in contact with the shrinking protoplast. Our protoplast continues to shrink and begins to pull away from the cell wall. We call this plasmolysis, which it has happened, और हम कहते हैं ये plasmolyze हो चुका है. And that point of plasmolysis is known as incipient plasmolysis. Eventually, as with the animal cells के अंदर भी तब भी आपके पास रुकता है जब तक वो दोनों तरफ water potential equal नहीं हो जाता. So this is when the plant cell was placed inside a hypotonic solution. This is normal, and this is when it was placed in a hypertonic solution. Hyper का ज्ञान मतलब जिस solution में उसको डाला, सेल नहीं, जिस solution में उसको डाला उसकी concentration ज्यादा है, water potential कम है, and vice versa for hypotonic solution as well. प्रोटोप्लास्ट वो सारे लिविंग कंटेंट्स हैं जो सेल वॉल के अंदर अंदर मौजूद हैं. जैसे ये आपके पास अगर सेल है, ठीक है, सिर्फ आप सेल वॉल को निकाल दो स्ट्रक्चर में से, बाकी जो कुछ पीछे रह जाएगा वो सारा प्रोटोप्लास्ट है. इज इट क्लियर? Yeah. So plasmolysis is the loss of water from plant or prokaryotic cell to point where the protoplast shrinks away from the cell wall. Incipient plasmolysis क्या है? The point at which plasmolysis is about to occur when a plant cell or a prokaryote cell is losing water, and at this point the protoplast is exerting no pressure on the cell wall. The changes described can be easily observed with a light microscope using strips of epidermis peeled from rhubarb petioles or from solid storage leaves of onion bulbs. ये epidermal strips को as a plant cell आपने यहाँ पे view भी किया है, और उनमें क्या क्या changes आए थे by putting them in different solutions that can be observed through a practical investigation as well. Next, we have active transport. Can you define me what is active transport? Active transport is the movement of ions and molecules. It's the movement of molecules from higher concentration, from lower concentration to higher concentration against concentration gradient using energy. Epic. Good job. Certain ions, such as potassium and chloride ions, are often found to be 10 to 20 times more concentrated inside the cells than outside. In other words, a concentration gradient exists with a lower concentration outside and a higher concentration inside the cell. अब आयंस जो है, अब जैसे एक प्लांट है, अब प्लांट को परवाह नहीं है कि यार उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आयंस हैं, उसको अभी भी ज्यादा चाहिए, उसको अभी भी रट लगी कि मुझे ज्यादा चाहिए है, प्लांट्स के पास तो ऑलरेडी इतने आयंस हैं, ठीक है. तो रूट्स एक्टिवली और आयंस करते हैं इवन तो अंदर हैं ऑलरेडी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो आपके रूट हेयर सेल्स होते हैं, थ्रू देयर रूट हेयर एंड हाई सरफेस एरिया एंड अदर प्रॉपर्टीज, वो और जितने मैक्सिमम आयंस एब्जॉर्ब कर सकते हैं दे डू फ्रॉम द एक्सटर्नली सॉइल जिधर आपके सारे होते हैं. So diffusion cannot be responsible for the gradient because now you have seen that ions are going to diffuse from a higher concentration to lower concentration. The ions must therefore build up against a concentration gradient क्योंकि height low करके उसका काम तो बन ही नहीं रहा. So the process responsible is known as active transport, और ये with the help of carrier proteins भी होता है which are known as pumps. One of the different types हमने facilitated diffusion के अंदर ही पढ़ा था. आप ये समझो कि facilitated diffusion में जो काम passively विदाउट एनर्जी और हाई टू लो हो रहा है थ्रू कैरियर प्रोटीन, वो फैसिलिटेटेड है. लेकिन जहां पे कैरियर प्रोटीन ने एनर्जी यूज करना शुरू कर दी और लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट जाने लगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वो पॉइंट कि ये वाली कैरियर प्रोटीन के थ्रू अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो रही है. Because now the energy is often supplied by the molecule adenosine triphosphate, which is the energy currency of the cell, and it is produced during respiration inside the cell. The energy is used to make the carrier protein change its shape, transferring the molecules or ions across the membrane. जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल, और आप A2 के अंदर भी अभी मेरे लेक्चर्स में देखोगे, द सोडियम पोटेशियम पंप, which is responsible for pumping 2 potassium ions in and pumping out 3 sodium ions at the same time. Such pumps are found in the cell surface membrane of animal cells, and in most cells they basically run. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही वाली डायग्राम है जो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी देखी थी, क्योंकि we are again talking about the same protein which is the carrier protein. So an average, it is estimated that on average these sodium potassium pump use 30% of the cell's energies.
आप सोचो नर्व सेल्स के अंदर 70% जो नर्व सेल की एनर्जी होती है वो सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप ले जाते हैं, और उसकी भी वजह है। कैन यू टेल मी व्हाट्स द रीजन कि व्हाई नर्व सेल्स के अंदर 70% एनर्जी सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप पे लग जाती है? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? because the sodium potassium pumps helps in the transmission of nerve impulses. थ्रू एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन Yeah, through पोटेंशियल और action potential. रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, this the Schwann cells. All right. So the role of sodium potassium pump is to pump three sodium ions out of the cell at the same time as allowing two potassium ions into the cell for each ATP molecule used. Sodium and potassium ions are both positively charged, so the net result is that the inside of the cell becomes more negative than the outside, and a potential difference is created across the membrane. The significance of this in nerve cells is discussed in chapter 15 as well, जहाँ पे हम देखेंगे and you'll see in the recorded lectures that how the action potential is created. तो you can see the pump has a receptor site for ATP, और वहां पे आके रिसेप्टर होता है। ATPase एंजाइम में से कोई चीज गुजरती है। ATPase एंजाइम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ATP टू ADP। ये ATP जब टूटता है, आप सोचते हो ना कि एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी तब आती है जब ATP टूटता है इनटू ADP प्लस फॉस्फेट। ये जो बॉन्ड टूटता है ना फॉस्फेट का, दैट बॉन्ड एक्चुअली रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है फॉस्फेट। और एनर्जी चाहिए इसको, आप ADP से ADC ने मोनोफॉस्फेट तक कर दो, एक और फॉस्फेट रिलीज करके। जैसे जैसे आप फॉस्फेट तीनों रिमूव करते जाओगे एक एक करके, एनर्जी आपके पास हर स्टेप में रिलीज होती रहती है, एज यू हैव सीन इन योर चैप्टर 12 एनर्जी एंड रेस्पिरेशन का बिल्कुल स्टार्ट एज वेल। So active transport can therefore be defined as the energy consuming transport of molecules or ions across the membrane against a concentration gradient. The energy is provided by ATP from cell respiration and that can occur into or out of the cell as well, चाहे कोई चीज बाहर भेजनी है या अंदर लानी है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कहाँ पे? रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, जहाँ पे आपको बहुत से यूजफुल मॉलिक्यूल्स यूल सी ओवर द वीकेंड पे। मैंने आपको लेक्चर शेयर करने हैं होम्योस्टेसिस के, देयर यूल सी कि बहुत सी चीजें जरूरी होता है कि बॉडी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ले, इंक्लूडिंग ग्लूकोज, इंक्लूडिंग वाटर। वहां पे बहुत से ऐसे चैनल्स लगाने पड़ते हैं आपको नेफ्रॉन्स पे, तो टू एक्चुअली एब्जॉर्ब बैक दोज यूजफुल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ताकि वो दोबारा से ब्लड में आ सके, ना कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। प्लांट्स ऑल्सो यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर एक्टिव एंड लोडिंग ऑफ शुगर, ये भी हम आगे चैप्टर 7 में ही देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आपके पास सुक्रोज लोड और अनलोड भी हो रहा होता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? Yeah. गुड। नेक्स्ट वी हैव एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म? कैन यू टेल मी इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? Uh, Endocytosis mean it is a bulk transport of molecules इनटू या आउट? uh, out of the cell. Endo is into, exo is out. ठीक है? So far, you have Yeah. been looking at different ways in which individual molecules or ions cross membranes. Sometimes the cells need to transport materials across their cell surface membrane on a much larger scale than it is possible using the mechanism studied so far. The materials include large molecules such as proteins or polysaccharides, parts of the cells, or even whole cells. As a result, mechanisms have also evolved for bulk transport. जैसे कि बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक एंडो और एक एक्सो। इनटू द सेल कोई चीज लानी है वो है एंडोसाइटोसिस टाइप ऑफ बल्क बल्क ट्रांसपोर्ट, और अगर कोई चीज आपने बाहर भेजनी है तो दैट इज टेकिंग आउट समथिंग थ्रू बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस में सेल सरफेस मेम्ब्रेन इंगल्फ कर लेती है, जैसे एक व्हाइट ब्लड सेल आता है, एक व्हाइट ब्लड सेल एक एंटीजन को देख लेता है, ये उसके पास जाएगा और अपनी मेम्ब्रेन की शेप ऐसे से कर लेगा कि उसको पूरा इंगल्फ करे, मतलब अपने हाथ लपेट लेगा उसके इर्द गिर्द, और फाइनली क्या होगा कि वो एंटीजन उस मेम्ब्रेन के अंदर आ चुके हैं थ्रू दीज सर्टेन स्टेजेस। इस तरह आप सोचो ये चीज एक वेसिकल है, एक कोई सब्सटेंस है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, और इन सेल्स के अंदर बहुत से वेसिकल फॉर्म के अंदर फिर वो फिरता रहता है एज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस विच इज द बल्क मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स। इसका दूसरा नाम पिनोसाइटोसिस भी होता है अगर वो लिक्विड्स ले रहा है, और फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है अगर वो लाइक पूरा पूरा पैथोजन या एंटीजन को, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स इंगल्फ कर लेते हैं, जिसको प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं इन योर चैप्टर नंबर 11।
और ये भी रिक्वायर करता है क्या, एटीपी। Exocytosis, on the other hand, is the bulk movement of liquids or solids out of a cell by the fusion of vesicles containing the substrate with the cell surface membrane, and exocytosis is also an active process. Phagocytosis or cell eating is a bulk uptake of solid material where I have just drawn the diagram above as well. किस तरह तीन stages में आपके पास phagocytes phagocytosis carry out करते हैं, they engulf any pathogen, for example bacteria, जो वो engulf कर लेते हैं. Pinocytosis होता है पीना, cell drinking, ये तो eating था, this was eating, this is drinking. जैसे कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई हार्मोन्स हैं जो आपको सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने, तो वो हार्मोन्स अब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको आप थ्रू पिनोसाइटोसिस भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनटू सेल. गॉट इट? क्या? Exocytosis, on the other hand, is the reverse of endocytosis, which is the process by which materials are removed from cells, and it happens, for example, in the secretion of digestive enzyme from cells of the pancreas. Secretory vesicles from Golgi apparatus carry the enzymes to the cell surface and release their contents. अब आपने वैसे ही आप होम्योस्टेसिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे कि किस तरह से एक साइनैप्स जब क्रॉस करना होता है, तो आपके पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर कैसे रिलीज करते हैं, थ्रू वेसिकल्स. और ये भी जब अगली मेम्ब्रेन पे उसने जाना होता है तैर के, तो वो भी आगे एंडोसाइटोसिस के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू आ जाती है. सो दैट साइनैप्स दैट यू विल स्टडी इन चैप्टर 15 इज एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ एक्सो, और फिर अगले ही मेम्ब्रेन में एंडो भी. ये आपके पास चैप्टर 15 के अंदर भी आ जाता है. दिस इज काइंड ऑफ अ डायग्राम दैट यू कैन व्यू एज वेल. And that is the end of your chapter number 4 of cell surface membranes. ये आपके पास टोटल आई गेस हैं 10 क्वेश्चंस. कितने हैं? 12 क्वेश्चंस हैं. ये 12 क्वेश्चंस आपने कल तक ही सॉल्व कर लेने सारे के सारे, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर.